Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss the relationship of biology with other sciences. The topic is on page number 7 and 8. So I am going to read the topic from page number 7. Biology in one way or other is integrated with other disciplines of science. यानी बायोलॉजी दूसरी ब्रांचेस के साथ मिलकर काम करती है. The animals move, walk, or run on the principles of physics. There is a similarity between working principle of lever in physics and human limbs. यानी जब हम वॉक करते हैं या जब हम ज़मीन पर चल रहे होते हैं तो हमारा स्केलेटन मूव कर रहा होता है, और अगर हम गौर करें तो इस मूवमेंट में फ़िज़िक्स के बहुत से प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं. इसी तरह ह्यूमन लिम्स यानी बाजू और टांगें जब मूव करती हैं तो इनमें फ़िज़िक्स के एक कॉन्सेप्ट लीवर को ऑब्ज़र्व किया जा सकता है. फिर है कि द बिहेवियर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स अंडरलाइन एंड एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ लिविंग थिंग्स. The physical structure of atoms and molecules determine their chemical properties and the roles they play in cells. इसी तरह अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो वी कैन सी दैट हमारे लिविंग सेल्स में बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, या आप यूँ कह लें कि जो भी लिविंग सेल्स हैं दे आर मेड अप ऑफ सम टाइप ऑफ केमिकल्स. सो इट मीन्स दैट बायोलॉजी इज़ ऑल्सो रिलेटेड विद केमिस्ट्री. So, to understand biology, basic knowledge of chemistry is necessary. The biology is not an isolated science. It is associated with other branches of science. इसका मतलब ये हुआ कि बायोलॉजी एक अकेली ब्रांच नहीं है, बल्कि ये बहुत सारी दूसरी साइंसेस के साथ भी इंटर रिलेटेड है. So, let's discuss some of them. Biophysics. The study of biological phenomena on the principles and laws of physics is called as biophysics. Biological organisms work on the principles of physics. For example, movement of muscles and bones. For example, जब हम अपने बाजू को मूव करते हैं तो फिज़िक्स के लीवर के प्रिंसिपल इस पर अप्लाई होते हैं, जिसमें एक साइड पर फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसे फल्क्रम कहते हैं, एक साइड पे लोड और फिर फोर्स अप्लाई की जाती है. तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है. सो द नेक्स्ट ब्रांच इज़ बायोकेमिस्ट्री. Biochemistry is the study of chemical constituents found in an organism, and chemical reactions taking place in the living organisms is called biochemistry. यानी जितने भी living organisms अर्थ पर मौजूद हैं they are made up of some type of chemicals, and their study is called as biochemistry. And living organisms consist of carbon, oxygen, hydrogen, nitrogen, etc. And many chemical reactions takes place in the organisms, for example, digestion of food, photosynthesis, respiration. All these chemical reactions, they involve chemicals. Now the next one is biomathematics or biometry. Statistics is related to collecting and analyzing various data or facts. The collection of biological data of facts through observations, experiments, and analyzing them for biological study and its application. In simple words, इस बात का मतलब ये है कि जब बायोलॉजी के अंदर वी हैव टू परफॉर्म सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स तो उसके लिए हमें डाटा को कलेक्ट करना होता है, और जब हमारे पास डाटा इकट्ठा हो जाता है तो उसको हमने एनालाइज करना होता है. एंड व्हेन वी हैव टू एनालाइज द डाटा देन वी हैव टू यूज सम मैथमेटिकल टेक्निक्स. So we can say that to analyze the data which is gathered after experimental work, biologists have to apply some mathematical rules. Now here comes biogeography. Biogeography is the study of distribution of plants and animals in different geographical regions of the world.
इस बात को आप यूँ समझें कि जैसे ज़मीन के मुख्तलिफ़ रीजन्स में मुख्तलिफ़ तरह के एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन डेज़र्ट एरिया वी नो दैट देयर आर सम वेरी स्पेसिफिक टाइप ऑफ एनिमल्स आर प्रेजेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल कैमल इज़ प्रेजेंट इन द डेज़र्ट एरिया। इसी तरह अगर हम वहाँ की वेजिटेशन को ऑब्ज़र्व करें तो हम देखेंगे कि वहाँ पर ज़्यादातर कांटेदार झाड़ियों वाले पौधे मौजूद होते हैं, जबकि दरख्त मोस्टली सहरा में बहुत कम पाए जाते हैं। इसी तरह पोलर रीजन्स पर जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है, वहाँ पर जो एनिमल्स मौजूद होते हैं वो सहरा के इलाके में नहीं पाए जाते। ज़मीन के मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ तरह के एनिमल्स और मुख्तलिफ़ तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं एंड द स्टडी ऑफ दैम इज़ बायोजियोग्राफी। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ बायोइकोनॉमिक्स। The study of biology from economic point of view is called as bioeconomics. Some of the examples of bioeconomics are यानी हम वीट को ग्रो करते हैं और हम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं कि आया ये वीट जो हमने ग्रो की है ये हमें कितना फ़ायदा दे सकती है, हाउ मच प्रॉफिट वी कैन गेट फ्रॉम दिस वीट. Similarly, another example is the fish production. So we can see that through fish farming how much benefit we can get. इसी तरह हम राइस की पैदावार से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि whether this rice is giving us benefit or not. Okay जी, that's it for today. So मिलेंगे next topic के साथ.